Jnanam Vijnanam Vimuktaye. The place where this sentence become a reality is Innovation and Incubation Center of Central University of Haryana. In the dynamic leadership of the Honorable Vice Chancellor of Central University of Haryana, Professor Tankeshwar Kumar and Professor Sunita Srivastav, this Innovation and Incubation Center of Central University of Haryana is going to be the torchbearer of science and technology of the whole nation. Proudly presenting the Innovation and Incubation Center of Central University of Haryana. So we are here at the Center for Innovation and Incubation of Central University of Haryana, Mahendragarh, and you can see a lot of activities going on. And in fact, we have opened up after 2 years of pandemic gap, and things have actually started happening now. Since December, I have taken the charge, and things are happening here. Students are getting attracted to this center, and they are coming up with innovative ideas. And this center conducts, competition for innovative models, innovative ideas, startup ideas once a year. And there are number of activities, workshops, and seminars which we take up off and on very regularly. In fact, once a week we conduct seminars for the students, though it is in webinar form, but then subsequently we will be holding seminars for the students, which basically helps them to have innovative ideas. Seedling of innovative ideas takes place during these webinars conducted, and we have beautiful speakers there, which are well known in this area of innovation and incubation. So we have number of things going on at our center. The students are actually engaging themselves not only in the beautification process of the center, but they have come up with number of ideas. So the events which we may have in future, they are preparing themselves for some 12 to 15 very good innovative ideas, which will be showcasing in various competitions throughout the year. And with small funding, so what we want to show here is that with small funding we have wonderful ideas being catered to, and students are, with the help of mentors, they are building up their models, and which we will take it up to the prototype level, and then follow the incubation cell. So we are very happy to say that 3 items of ours we have taken up to the stage of incubation, wherein we have a broom machine which basically can make 3 to 4 brooms in 1 minute. It is so fast, and it will help certainly the workers here, those who are engaged in this industry. And we also have LED making in the incubation. We are conducting workshops wherein we teach the students, the interested students, how LED can be made with very cost effective method. And not only that, we also have in the incubation level, at the incubation level we have built up Bartan bar, which we call as CUHCII Bartan bar, which is made of industrial ashes collected from industries, and number of things, so that if you use them, you will come to know that it is really effective, but at the same time very smooth on your skin, and it has antibacterial properties also. And we will be soon going to the stage where we have a startup
factory type of a thing here. And I don't know where, how long or how far we can go with it. But then I dream of starting startups here, small startups, and building some small factories even at the university level, and helping all the interested sectors who want to take up this idea. Now, and not only that, we want fundings from industries for all these startup ideas, and we also invite these industrialists in the local area and the Delhi and surrounding areas, so that we are able to get some funds from them after showing them our models. So it is going to be a very healthy activity for not only for our students, but to the nearby students. So the competition which we hold every year, we not only invite the schools of the district, but also the colleges, the universities at the competition level. And in fact, it is around 100 entries every year which we conduct for the competition level. So here it is always expected that at least few of them have that strength in them, which we can take it up to the incubation level, and with novel ideas we are able to serve the society and country at large. मेरा नाम कुलदीप है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन में बैचलर ऑफ वोकेशन IWM का स्टूडेंट हूँ और मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने क्या बनाया है कि जैसे कि अपने घर में कई बार एलपीजी की लीकेज हो जाती है, हमको पता नहीं चलता, बाई चांस हम घर में नहीं है कैसे भी करके, तो वो एलपीजी की लीकेज लगातार चलती रहती है और उसके कारण मान लो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार सिलेंडर फट जाता है, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, तो उसके आसपास के घर भी जो डैमेज हो जाते हैं, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये हमने क्या बनाया मैम, ये मैंने ऑर्डिनो लिया है और ये गैस सेंसर अपना। तो जैसे लीकेज होती है तो ये गैस सेंसर जैसे फायर अलार्म होता है, वैसे ये गैस सेंसर उसको सेंस करेगा, एलपीजी में जो मीथेन प्रोपेन वगैरह होती है उनको सेंस करेगा और उस हिसाब से ये उसको डिटेक्ट करके और हमारा जो घर का एग्जॉस्ट फैन है उसको स्टार्ट कर देगा। एलपीजी गैस सारी बाहर निकल जाएगी, साथ ही साथ बजर है, बजर एक्टिवेट हो जाएगा, हमें इन्फॉर्म कर देगा कि भाई एलपीजी गैस लीकेज हो रही है। अगर हम बाई चांस घर में नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे घर की जो सप्लाई है, ये मैंने फैन लगा रखा और ये एलईडी लगा रखी है, इनसे मैं डेमोन्स्ट्रेट ये करना चाहता हूँ कि हमारे घर की सप्लाई फैन वगैरह जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को डाउन कर देगा, एमसीबी डाउन कर देगा, जिससे कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मतलब अगर गैस लीकेज हो गई तो एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट रहेगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की लाइन हमारी कट गई और जैसे ही सारी गैस हमारे घर से बाहर निकल जाती है तो एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाएगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी वापस ऑन हो जाएगी। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सेफ है। ये जो इससे कनेक्ट किया हुआ ये मैम ये ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग से करा है ना आपने सारा, दिस इज बहुत सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से ये सारा किया हुआ, तो बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। आने वाले समय में बहुत इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आए दिन घर में किस तरह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, एक्सीडेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रही है। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से विभाग IWM का स्टूडेंट हूँ। ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर में मैं जब आया तो मुझे यहाँ पे कुछ वेस्ट पेपर मिले, जिससे मुझे उसको रियूज़ करना था, मतलब तो मैंने उनसे एक साइकिल बनाई उस वेस्ट पेपर से। और ये साइकिल बनाने का मेरा मकसद यही था कि एक मैसेज जाएगा लोगों में कि आप साइकिल को यूज करो, आप उनसे फिट रहोगे, आपको बहुत सारी जो भी बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने में आपको मदद करेगी, मतलब आप फिट रहोगे इससे साइकिल चलाने में। आप हर रोज़ आधे घंटे साइकिल चलाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है इससे। My name is Bajal. I am a student of Department of Biochemistry, Central University of Haryana. I am working at Center for Innovation and Incubation, and I prepared a module of plant security system, also microbial fuel cell, also oxygen generation from the electrolysis process.
So in this module, also the new things we can see here. By working on this model, I got to know that some electric current also affects on plants. So with that electricity, plants growth rate increased by up to 70%. So if we supply some electricity to the plant, it will grow faster than other one. Also, in this plant, if someone tries to cut a plant, so this plant gives a buzzer. So it indicates someone is cutting me. Also, we are using Azotobacter bacteria here. That bacteria producing electricity in such a way so we can run these two sensors on that electricity. The two sensors are hydro sensor and piezoelectric sensor. Both sensors working on natural electricity produced by plant as well as microbes. So we are not using any external electricity to run our sensors. Also, we are getting oxygen gas, so that oxygen gas we can use. तो इसके अंदर क्या होगा, हम जैसे ही पेड़ को कोई काटेगा तो इसके अंदर बजर बजेगी। अच्छा, ओके ओके। इसलिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, ताकि पेड़ को कोई काटे नहीं, इसलिए ओके। तो सेंसर वगैरह इसके अंदर सेंसर यूज हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते, मैं सुनील कुमार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के तहत इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में फैकल्टी हूँ और यहाँ सेंटर फॉर इनोवेशन और इंक्यूबेशन में मैं एज ए मेंबर हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स लगातार इनोवेटिव एक्टिविटीज़ पर अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन को देखने को, एक इनोवेटिव इकोसिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी में है ना, इस तरह से पैदा हो गया है, एक बन रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो हमारे माननीय कुलपति के दिशा निर्देशन में जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव बने, और उसके साथ साथ उन्होंने इनोवेशन और इंक्यूबेशंस दोनों को एक साथ जोड़ने का एक हमारा मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स किसी भी तरह, किसी भी मायने में किसी से कमज़ोर ना रहें, वो पूरी तरह स्किल बने और स्किल लेकर के और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की जो कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल करें। इसी दिशा निर्देशन में माननीय कुलपति के द्वारा जो इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर में जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और उस जिसके तहत हमारी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का एक इनोवेशन का माहौल बन रहा है उससे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह की पेंटिंग्स हैं, जिस तरह से हमारे पास अभी भी 15 से 20 प्रोजेक्ट पे हम लगातार काम कर रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हमारे साथ हैं और हमारे से सेंटर की जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव मैम, वो हमारे साथ एक वॉलंटियर्स की तरह काम करती हैं और मैम दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं और उसी का नतीजा है कि हमें हर प्रकार का सपोर्ट उनकी तरफ से मिल रहा है और जिसके द्वारा एक कम समय में माने कि हमने ये आप जो देख रहे हैं जितने भी हमारी सफलता है, प्रोजेक्ट्स पे लगातार जो काम चल रहा है, ये हमारा करीब 2 महीने का एक दिन रात जो मेहनत होती है उससे हमने करीब 15 के आसपास प्रोजेक्ट्स पे हमने सफलता हासिल कर ली है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एयर बम्पर सिस्टम का हमने यहाँ पे लगाया है कि आजकल आप देख रहे हैं जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्हीकल्स में हमारे पास अंदर से तो सिस्टम दिया जाता है कि सीट बेल्ट हमारे पास होती है और अंदर से एयर बैग्स दिए जाते हैं, लेकिन बाहर गाड़ी जब डैमेज हो जाती है और आजकल इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग होती है, तो उसके द्वारा एक बहुत बड़ा लाखों लोग है ना वो एक्सीडेंटल होकर के मौत के शिकार हो जाते हैं। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है और बहुत बड़ी एक त्रासदी हो जाती है। तो ऐसे में वी आर द इनोवेटर्स ही हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसी चीज़ों पे खोज करें जो एंटी एक्सीडेंट सिस्टम जनरेट करे। तो हमने जो ये वाला एयर बम्पर सिस्टम जो हमने यहाँ पे लगाया है उसमें हमने IR सेंसर लगाए हुए हैं
जब दूसरा व्हीकल एक्सीडेंटल स्पीड से आता है तो दोनों व्हीकल्स के जो बम्पर हैं वो उसमें जो सेंसर लगे हुए हैं स्पीड को सेंस करके, और ये जो आप देख रहे हैं इस पर हम काम कर रहे हैं अभी, कंप्रेसर सिस्टम है, तो इस कंप्रेसर से एयर जनरेट होती है और उससे बम्पर आगे निकल जाता है। तो दोनों व्हीकल्स के बम्पर टकराते हैं और व्हीकल पूरी तरह से आपका सुरक्षित रहता है। जब व्हीकल सुरक्षित रहता है तो उसके बाद जो आप उसके अंदर ड्राइवर है, पैसेंजर है, वो ऑटोमेटिकली सेफ रह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आने वाले समय में जब इस कॉन्सेप्ट को हमारी व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी अपने व्हीकल्स में, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हमारे है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाली है। और जो एक्सीडेंट का एक बहुत बड़े हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं उन पे काफ़ी तरह से लगाम लगेगा। ऐसे ही हमने कि ये जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं स्पीड जैमर, आपने देखा होगा किस तरह है ना मोबाइल से जब आप मोबाइल का जैमर लगता है तो वहाँ मोबाइल की रेंज एक तरह से हो जाती है, पूरी तरह से वो लग जाती है। तो इसमें हमने ये स्पीड जैमर बना दिया है। कई बार आपने देखा होगा कि अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं गाड़ी में बैठ के और उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और आजकल तो उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो इवन नाका तक भी तोड़ देते हैं, और ये एक्सीडेंट को भी बहुत बड़ा एक एग्जाम वो देता है, कारण बनता है। तो इसलिए हमने स्पीड जैमर सिस्टम बनाया है इसमें। और स्पीड जैमर सिस्टम में आप देखेंगे कि जब व्हीकल इसको खास करके हम जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पे फिट कर देते हैं, क्राउडेड एरिया है वहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं। तो जहाँ से भी व्हीकल जब जाता है तो ये कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम लगता है, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हीकल आपके घर के सामने से स्पीड से 100 की स्पीड से आ रहा है और ये आपका कंट्रोलर सिस्टम है, तो ये देखिए स्पीड कम हो गई, 100 से सीधी 20 की स्पीड हो गई है। तो ये स्पीड जैमर का काम करता है, स्पीड को एकदम से बिल्कुल कम कर देता है। अगर कहीं बैंक के आसपास है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास है, या कोई VIP जोन्स है, उधर से अब व्हीकल गुजरता है और आपकी स्पीड कम करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली ये स्पीड जैमर की हेल्प से उसकी स्पीड पूरी तरह से कम हो जाती है। ये देखिए आप, इसकी से वॉइस में भी एक तरह से हो जाता है। तो ये हमारा स्पीड जैमर का काम हो रहा है, इसको भी लगातार हम डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन से इस प्रोजेक्ट का व्हीकल जो कंपनियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे आजकल आपने देखा ये हमारे पास है एक तरह से एडवांस जो हमने सोलर सिस्टम बनाया है। आपने देखा होगा कि जब तक सूरज की रोशनी एक तरह से आती है, सन रेडिएशन इस पर गिरती हैं, तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो ये बनी होती है सोलर प्लेट्स, तो सीधा जो सन की रेडिएशन इस पर आती हैं तब तक ये चार्ज होती है। क्योंकि आप देखते हैं ना सन की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो हमने ये ऐसा सिस्टम बनाया है कि जहाँ से भी सन जिस डायरेक्शन में होगा ये प्लेट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ से अगर रेडिएशन आ रही है और यहाँ आप ये करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इस प्रोजेक्ट को ना अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। और आज के टाइमिंग में आप देखते हैं ग्रीन एनर्जी का जिस तरह से चला हुआ है, तो हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी टेक्निक्स बनाएं सोलर के सिस्टम में कि जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से हम फॉसिल फ्यूल की हेल्प से है ना और रिसोर्सेज की हेल्प से जो बनाते हैं, कोयले की हेल्प से बिजली बनाते हैं, तो ये रिसोर्सेज लगातार खत्म होते जा रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम जब मैक्सिमम सोलर से हमें एनर्जी मिलेगी तो एक ऐसा क्रांति हमारे पास आ जाएगी और देश का एक बहुत बड़ा बजट का पैसा है वो हमारे पास बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हम ऐसा एक डस्टबिन सिस्टम बना रहे हैं जो जिसमें आप एक साथ गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और जैसे मेटल्स होती हैं वो एक साथ आप सेग्रीगेट कर पाएंगे, ऐसा हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और कोविड के दौरान जो डिफरेंट टाइप के सैनिटाइज़र के जो हम स्कोप्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ऐसे काम कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि कोई ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर आगे आएगा, फंडिंग भी देगा और आगे इसको लेके भी जाएगा हाई लेवल पे। एक हमने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है, आपने देखा होगा कि आजकल जो सड़क पे जब व्हीकल जाता है तो उसमें गाड़ी कई बार एक्सीडेंट हो जाती है, और खासकर जब कोई बंदा अकेला होता है, अकेला जब बंदा होता है तो उस समय वो चला रहा होता है तो उसके लिए गाड़ी का टायर चेंज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाड़ी उस समय उससे अकेले से उठ नहीं पाती। और खासकर हम बात करें तो जब अगर कोई महिला उसमें गाड़ी चला रही होती है तो उसके लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गाड़ी में हमने कैसा सिस्टम डेवलप किया है
कि इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम से आप गाड़ी को ऊपर उठा सकते हैं, अकेला बंदा गाड़ी ऊपर उठा सकता है ऐसे। और इसकी ये गाड़ी आगे से और पीछे से दोनों साइड से उठ जाती है, देखिए। तो आसानी से आप अपना गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर गाड़ी कई बार आपको घर पे धोते हैं तो बड़ी समस्या आती है, गाड़ी को हम नीचे से नहीं धो पाते हैं, इसकी वजह से गाड़ी जल्दी से जंग लग जाता है और गाड़ी खराब हो जाता है, उसका अंदर वाला नीचे वाला पोर्शन हो जल्दी से, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए गाड़ी पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है। सो ये जो आपने लगाया है हाइड्रोलिक सिस्टम, जी जी, जिसकी वजह से ये ऊपर उठ रहा है, तो इसको हम बटन के फॉर्म में बटन की फॉर्म में लाएंगे, बटन की फॉर्म में लाएंगे, जैसे आज आप देख रहे हैं ना, पुश बटन होगा, ये पुश बटन है, आराम से ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल श्योर श्योर। हाँ हाँ यस, वंडरफुल। हाँ, एंड मुझे नहीं लगता इसमें बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल एक मामूली से, हाँ बिल्कुल मामूली अमाउंट इस प्रोजेक्ट में। So it is a very innovative idea, and though people have been working with the hydraulic principle, but ये एक idea जो है बहुत innovative idea है, and it is certainly going to help. So this has been a wonderful achievement of this center. Innovative. ये सेंटर फॉर इनोवेशन और इंक्यूबेशन के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है एयर कार, और ये ऐसी कार है जिसको हमने पूरी तरह एयर प्रेशर से इसको ना हमने चलाया है, और इसके लिए हमने कंप्रेसर का यूज़ किया है। इस कार में किसी प्रकार के पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस का प्रयोग नहीं होता है, इसमें पूरी तरह से एयर कंप्रेसर की हेल्प से इसने चलाया है। इसका जो आप देखेंगे कि जो इसमें सिस्टम होता है ये वाला, इसको हमने जो 4 स्ट्रोक का इंजन होता है उसको 2 स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया है, और ये एयर प्रेशर यहाँ से अंदर जो हमने कंप्रेसर लगाया है उसकी बस है एयर प्रेशर आता है, और इंजन पे यहाँ हम इसको प्रेशर डालते हैं, तो इससे जो केम घूमती है और केम से फिर उसका क्रैंक घूमती है ना। अभी इसकी जो स्पीड हमने एक्सपेरिमेंटल स्पीड करके देखी 39 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हमने अभी करके देखी, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट। और इस पर हमने EV Expo 2016 में इसको हमने दिखाया था, एंड वी गॉट बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फॉर दैट, है ना। तो ये हमारा सेंटर के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है एयर कार। तो EV Expo आपका इंटरनेशनल लेवल पे था? इंटरनेशनल था, 84 MNCs में उसमें पार्टिसिपेट किया। We are the students from Environmental Science Department, and we are just polishing this car as it is a project of sir already. So tell me about the thought behind this work. It's basically recycling of the waste products. We have used the cycle tire and the CDs जो कि waste में पड़े हुए थे पीछे backyard में, and we have reutilized it and used it over here for decoration purpose. This beautiful place of Central University of Haryana. कुछ समय ये बंद हुआ था लॉकडाउन के कारण, but now it's active now. So let's see how innovative work are going on. मेरे साथ है दिलीप सर जो कि पेंटिंग में लगे हुए हैं। जैसा कि मेरा ये इसका उद्देश्य बनाने का कि एक बच्चा होता है, उसकी जो दिमाग होती है एक बल्ब की तरह होती है, तो हमें उसमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो ऊर्जा मिलेगी तो एक नए आइडिया लेगा, पहले उसके विचार आएंगे, उसकी योजनाएं दिमाग में आनी चाहिए, तो जब उसके ये सारे विचारें आएंगे तो उसमें नए नए उसकी आत्मविश्वास बढ़ेगी, उसमें कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। यानी और है ये जैसे कि वायर की जो पाइप होती है उससे बनाया गया है, इसमें बॉटल्स हैं, ये भी हमारा ख़राब चीज़ थी, तो उसको हम कैसे यूज में, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो उसमें हम पक्षियों के लिए पानी दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। If you can see the center, of course, you know, it will be shown that how beautiful the center has become with very small inputs and beautiful ideas. That is the whole crux of it. So not only we encourage students of all departments, may it be arts, may it be commerce,
may it be any faculty. So wherever the students can come up with some ideas, we help at this center to nurture those ideas and to bring some form out of it and incubate the things. So we are very happy, at least for the past 2 months, which the things have worked out at the center, and we'll be doing, I think, wonderfully well, because we have a very glorious past here, and students have won at the international level, even at the EV Expo, the first prize grabbed by this university. So we have, wonderful students here, wonderful teachers here, mentors who can actually take up the things and bring it to incubation level. So that is the plus point and wonderful attraction of this center for innovation and